लला नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये मैं टीएटी के डिमांड और सप्लाई पर आ रहा हूँ। व्हाट टीएटी इज डिमांडिंग एंड व्हाट यू आर सप्लाइंग। टीएटी स्टैंड्स फॉर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ध्यान रखना, whenever you go to the board, services selection board, सेवा चयन बोर्ड, and the moment this test is conducted, the technical officers, psychologists or the scientists whosoever conducts a test, he speaks the instruction about TAT and he says, gentlemen, this is the first test of battery of your psychological test known as TAT, thematic perception test. This is purely the test of your imagination. और ध्यान रखिएगा, बोल रहा है प्योरली। This is purely the test of your imagination. A number of pictures, that is 12, 11 plus 1, last will be blank one, will be shown to you on the monitor for 30 seconds each, on which, अगले contents को ध्यान रखिएगा, on which you are required to write a story around the persons and situations shown in the picture. इस पर मैं प्रेशर इसलिए दे रहा हूं कि इसका रिलेशन डिमांड और सप्लाई से है। What TAT demands and what you supply. There should not be any difference between demand and supply. मैं कब मांग रहा हूं आप समझ दे रहे हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, आप कलकत्ता की बात कर रहे हैं। मैं जाने की बात कर रहा हूं, आप आने की बात कर रहे हैं। You are required to write a story around the persons and situations shown in the picture. मैंने बताया इसका रिलेशन डिमांड सप्लाई से है, इसलिए इसको मैं इंटरप्रेट कर दे रहा हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑल स्टोरी अराउंड द पर्संस एंड सिचुएशंस शोन इन द पिक्चर, आंसरिंग 3 बेसिक थीमेटिक क्वेश्चंस। आई एम यूजिंग द वर्ड बेसिक। आंसरिंग 3 बेसिक थीमेटिक क्वेश्चंस. What led to the situation? What is currently happening? And what will be the conclusion or the outcome of this happening? फिर बोलता है, please write a story. Do not merely describe the picture. फिर बोलता है, while writing the story, your thoughts, feelings, sentiments, emotions, actions come together and that will become the material for our evaluation. फिर वार्निंग इंस्ट्रक्शन देता है, do not write mucked up story or stories borrowed by anyone or derived by TV, serials, books, etc. Whatever you write, you should write your own. ये पर्सनालिटी का टेस्ट है। या तो एक पर्सनालिटी को तीनों जगह ऐसे ही परफॉर्म करें जो आपने साइकोलॉजिस्ट के साथ परफॉर्म किया, वही जीटीओ के साथ परफॉर्म करें, वही आईओ के साथ परफॉर्म करें। अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप लिखते हैं कि मैं शेर मार दूंगा, तो आईओ में आप बोले कि मैं शेर मार दूंगा। अगर पूछता कैसे मार दूंगा तो बता दीजिए कैसे से मार दूंगा। जब जीटीओ का टर्न आता है तो बोल देगा ये शेर है, ये हथियार है, ये सामने शेर खड़ा है, मार कर दिखाओ। क्योंकि वो दैट इज एन ऑब्जर्वेशनल टेक्निक। ये दोनों इन्फ्लुएंशियल टेक्निक हैं। इन दोनों को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों से मतलब है। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक जो जीटीओ की टेक्निक है उससे प्रेजेंट से मतलब है, वो ऑब्जर्वेशन अवलोकन पर आधारित है। मैं लड़ा इस मुद्दे पर आता हूं। अब देखो, आप लोगों से जनरली गलती क्या होती है, हम बड़े प्रैक्टिकल मुद्दे पा रहे हैं। आप कहते हो मैं स्टोरी लिख के आ गया। अगर टीएटी जो डिमांड कर रही है, अगर वह सप्लाई नहीं आप दे रहे हैं
what is required in TAT, you are not fulfilling. What is wanted in the TAT, you are not giving. इसका मतलब there is a difference between obeying. The question mark goes against your perception, observation, and the imagination. Imagination is the scientific application of your practical principles or the practical application of your scientific principles. Imagination only exists in clue, not in vacuum. Now the question comes in nutshell, how to develop the imagination. The moment you develop so many alternate of a particular question, your imagination develops. The moment you find out so many answers of a particular question, your imagination develops. The moment you start finding so many alternates, your imagination develops. तमाम लड़के हमको फोन करते हैं कि जब आप इमेजिनेशन पे बोलें तो इसके एग्जाम्पल्स दे दें। लल्ला चलो एग्जाम्पल पाते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत ही समझ में आ जाएगा, बहुत खुशी होगी आपको। मैं न्यूज़पेपर के कितने यूज हो सकते हैं? सही पूछ लो, खाना खा लो, किताब में कवर लगा लो, ठंडक लग रही है कपड़े के नीचे उसको डाल लो, ठंडक नहीं लगेगी। जूता पोंछ लो, पानी में भिगो करके शीशा पोंछ लो, मैसेज किसी को कर दो, पढ़ लो, कंपटीशन की तैयारी कर लो, किसी को मैसेज पास ऑन कर दो, उससे पढ़कर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर लो। पैकिंग में उसको इस्तेमाल कर लो, घर को पोंछ लो, कहीं बिस्तर लगा के सो जाओ, उस पर खाना खा लो, उसकी नाव बना करके बरसात में लड़के तैराते हैं कि मैं अनूप जुलटा की एक गज़ल है कि ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, भले छीन लो मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो बारिश में नाव बनाकर उसको चला दो। आप देखो इमेजिनेशन के मेरे कितने यूज बता दिए आपको। कलम की सही पूछ लो, अगर कलम का पीछे का पोर्शन बंद नहीं होता तो न्यूज़पेपर वाला लपेट उसको बंद कर दो, टाइट हो जाएगा वो। किताब में लगा लो, उसका पेज 440 के ऊपर आपने पढ़ा है तो एक फ्लैग बनाकर लगा लो, 40-40 पेज के बाद खोल लो। कितने यूज हमने आपको बता दिए इमेजिनेशन के। आपको मैंने कहा मेरा रिजर्वेशन, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। आप कहते हो कि एक एग्जाम्पल मत दीजिए, 2-3 दीजिए, एक और ले लो आप। मैंने कहा कि आप मेरा रिजर्वेशन करवा दो और मुझे जाना है। कहा सर आपने टिकट काउंटर कहा सर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। हमने कहा साहब तो कोई प्रयास करो, देखो फलाने आदमी है उससे मिलो, DRM कोटा में करवा देगा। कहा साहब कोटा फुल हो गया। हमने कहा ठीक है बाराबंकी से करा लो, रायबरेली से करा लो, यहाँ पर हरदोई से करा लो। कहा सर वो भी नहीं मिला। कहा ट्रेवल एजेंट से कांटेक्ट कर लो। कहा वो भी सर नहीं मिल रहा है। कहा देखो स्टेशन पर कई आदमी टिकट बेचने आ जाता है, वो ले लो। कहा सर वो भी नहीं मिल रहा है। कहा ठीक है एक काम करो। कहा सर एक काम करिए जब TT जाएगा प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं, और TT जाएगा तो आप प्लेटफॉर्म टिकट दे दीजिए, गार्ड से वो कर करके वो अपना टिकट और सब बना देगा आपके। इससे हमने कहा नहीं और कोई तरीका सोच। कहा ऐसा है कि यहाँ से 10 कदम दूरी पर बस स्टैंड है, लग्जरी बस है, मैं उसमें यात्रा करा देता हूँ। फिर हमने कहा ठीक है चले जाओ। वो पता करने गए, कहा सर लग्जरी बस आज कैंसिल हो गई है, मैं एक शेयर टैक्सी का इंतजाम कर देता हूँ आपको। एक जगह से एक जाने के लिए, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए कितने अल्टरनेट हैं। यहां से चारबाग रेलवे स्टेशन है, वहां जाने के लिए कितने रास्ते हैं। मैंने कहा ये ब्लॉक हो गया, कहा सर इधर जाएंगे, ये ब्लॉक हो गया, इधर जाएंगे, सर ये ब्लॉक हो गया, इधर जाएंगे। साइकिल से हम नहीं जाएंगे। कहा ठीक है सर पैदल हो लेंगे, रिक्शा से हो लेंगे, कड़कड़े से हो लेंगे, शेयर मोटरसाइकिल किसी से लिफ्ट ले लेंगे। जब आप एक प्रॉब्लम के तमाम अल्टरनेट ढूंढते हो, दैट इंडिकेट्स that you are rich in your imagination। लला थोड़ी स्टोरी पा जाते हैं अब काम की बात डिमांड सप्लाई पर। तो इसका जो हेडिंग है डिमांड एंड सप्लाई इन TAT, इंट्रोस्पेक्शन,
इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। मैं लड़के से बोलूँगा कि लला तुम यार सिचुएशन पढ़ दो इसकी। चलो लला सिचुएशन पढ़ो तुम। Situation. This is drowning scene where a pond has been shown and a child is drowning and another child is moving towards him for rescuing. On the bank of the pond, a young man is standing and observing the situation. The picture of the young man is somewhat semi-hazy. Except this, no other human settlement or environment is being shown. ओके लला आप देखो फिगर निकाल देना। लला देखो एक फिगर है आपको दिखाई देगा यहाँ पर, उसमें एक लड़का डूब रहा है, छोटा सा लड़का है, कंधे पर बैग लिए उससे एक बड़ा लड़का उसके तरफ मूव कर रहा है। रस नहीं कर रहा है, मूव करने में रस करने में अंतर होता है, मूव कर रहा है वो। और ऑन दी बैंक ऑफ दी पॉन्ड में तालाब के किनारे एक यंग आदमी हेजी ड्रेस में। लला हेजी को एम्बिग्युअस बोलते हैं, बोर्ड वाले इस्तेमाल करते हैं कि पिक्चर एम्बिग्युअस होती है। मैं एम्बिग्युअस वर्ड को इंटरप्रेट कर दूं, एम्बिग्युअस मीन्स नॉट क्लियर, हेजी, सेमी हेजी, कंप्लीट हेजी, मर्की, lacking light, which is not clear, has got more than 2, 3, 4, 5 so many interpretations. अगर पिक्चर हेजी है यू आर लकी, आप कहीं कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये सेमी हेजी है, आदमी दिखाई दे रहा है, औरत नहीं है। तो ये आदमी खड़ा है, ये सीन है पॉन्ड का, ये ड्राउनिंग सीन है। ओके, अब एक लड़का जो आर्मी का है, हाँ आर्मी का है, आर्मी का ये आदमी है, इसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आगे मैं डिटेलिंग करूँगा। ये आर्मी का आदमी है, ये लोअर मिडिल क्लास से ऊपर मिडिल क्लास में ये आता है, घर की इनकम ठीक ठाक है, इसने क्वालिफिकेशन फौज में आने के बाद इन्हांस किए, भाई बहन पढ़े लिखे हैं, और ये 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है। और ये केस हमारे पास अभी 8-10 दिन से हैंडओवर हुआ है। थोड़ा सा इसको प्रॉपरली अगर गाइडेंस मिल जाए तो इसका सिलेक्शन का केस है, क्योंकि इसकी अंग्रेजी वर्केबल है, उसमें संशोधन करना है। चलो सिचुएशन को पढ़ो। हाँ स्टोरी पढ़ो। Story. Sandeep was newly elected Sarpanch of Julana village. In his village there was a pond which water was famous for recover skin disease, but he seen the water of pond became very dirty. He met with youngsters and other member of village, discussed with them. He along with villagers started to clean pond, removed all plastic and other things from water. He also approached to the BDO to repair boundary wall. He also passed the instructions to the villager not to wash the cloth in pond. He put the board for the devotees not to throw prasad, bangle and coin in the pond. By his efforts, water of pond get cleaned and now all are getting benefits. लला मैंने ये सिचुएशन इसलिए दिखाई कि आपको डिमांड और सप्लाई में अंतर क्या है ये मालूम हो जाए, और टीएटी की वास्तविकता क्या है। इस कंट्री में जिनको टीएटी नहीं आती है उनको टीएटी नहीं पढ़ानी चाहिए। मैं 40-45 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट पर रिसर्च किया हुआ। 8 किताबें लिखी, सब किताबें आपके सामने आई है, सब किताबें आपके सामने, यहाँ तक कि स्क्रीनिंग पर अगर ये ले लें किताब तो आप स्क्रीनिंग फेल नहीं होगी। 11 वायर की सीरीज दी हुई है। आप देखें कि ये क्लास 1 का हाईएस्ट कैडर है। हमने एक स्टिमुलस दिया, मैं कर्नल वाले पुणे से पुणे वाले कर्नल साहब से सहमत हूँ, टीएटी के मामले में बिल्कुल सहमत हूँ, और मामले में सहमत टीएटी में ज़्यादा सहमत हूँ। जो दिल्ली वाले कर्नल एलवीर सिंह हैं उनसे भी सहमत हूँ। कर्नल साहब कहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं कि जो स्टिमुलस आपको दिखाया गया है, जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दोनों के बीच में आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है।
मैं इस चीज को इंटरप्रेट कर दूं आपको. What do you mean by freedom of choice? TAT अनकॉन्शियस टेस्ट है, अनगाइडेड टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है, कोर टेस्ट है, मेन टेस्ट है, और फुली कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल, नॉट बाय द साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और द टेक्निकल ऑफिसर. क्योंकि साइंटिस्ट केवल स्टिमुलस सप्लाई करता है. स्टिमुलस को मैं जरा इंटरप्रेट कर दूं. जो भी सीन आपको सामने दिखाई जाती है उसको ओबियस कहते हैं या स्टिमुलस कहते हैं. उसको आपको स्टिमुलेट करती है, उद्वेलित करती है, ताकि आपके इमोशंस अवेक करें, पेनिट्रेट करें, आपको प्रेशराइज करें, आपको परसिस्ट करें कि आप एक्शन लें. उसी को ओबियस कहते हैं. जो आपके सामने ओबियस दिखाई दे रहा है ये 100% नहीं है. इट्स नॉट द होल, ये संपूर्ण नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ द होल. ये संपूर्ण का एक भाग है. तभी तो बोलता है साइंटिस्ट यू कैन गो बियॉन्ड द ओबियस. अब ओबियस के ऊपर भी जा सकते हैं. पीपीडीटी में ओबियस के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि परसेप्शन का टेस्ट है. इसमें ऊपर जा सकते हैं क्योंकि अपरसेप्शन का टेस्ट है. गोइंग बियॉन्ड द ओबियस विल इंप्रूव योर इमेजिनेशन. लेकिन आप ओबियस को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे. अब ये ड्राउनिंग का सीन है. मैं सीधे एकदम आपके पॉइंट पर आता हूं. दिस स्टोरी डिमांड्स रेस्क्यूइंग टू सेव द बॉय. लला, मैं छोटा सा 1-2 मिनट का आपसे क्षमा चाहते हुए मैं एसएसबी की डिमांड पा रहा हूं. SFC wants of defense wants a crisis leader, a man or an individual who cannot manage the crisis, who cannot solve the crisis, who cannot cool down the crisis, who cannot combat the crisis, is the most miserable man in the world. We want challenger, risk taker, troubleshooter, savior, problem solving person, problem solving leadership in crisis, leadership of crisis, and leadership for crisis. We want crisis managing individual. लला, एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दें आपको. We are not commissioning you for the executive job or the managerial job. We are commissioning you, our system is commissioning you to confront the dent, dust and dirt of life. ये पिक्चर रेस्क्यूइंग की डिमांड कर रही है. ड्राउनिंग को बचाना है. आप चले गए पॉइजन पर तालाब में. कि ये तालाब में पॉइजन कहां से आ गया? पॉलिथीन फिर तो हर जगह नदी में फेंकी जाती है, तो उसे जहर हो जाएगा. इसका क्या होगा जो लड़का डूब रहा है? ये तो अगर ये जहर होता तो लड़का इसमें जाता ही नहीं, नहाता ही नहीं. मतलब व्हाट सिचुएशन डिमांड्स, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस क्वालिफिकेशन? इफ यू आर नॉट हैविंग द जनरल अवेयरनेस, if you are not having the reasoning, if you are not having the capacity or capability to perceive, observe, imagine, तो ये अवसर कैडर आपके लिए नहीं है. It requires perception, observation, imagination. Capacity for correct cognition is the definition of intelligence. Ability to solve the problem correctly, accurately and timely, that is intelligence. आगे बढ़ते हैं. सेकंड है सिचुएशन पढ़ो. पिक्चर नंबर 4, 6, 7. Okay. Situation: 4 youngsters in the same dress are seeing the notice board. First youngster, who is standing on the left side, is lifting his right hand and pointing the notice board. Second individual is also raising his right hand but below the head. Third individual is lifting his right hand and also
pointing on the notice board, but fourth individual is not active in the similar way, but looking right side of the board while lifting his right hand. I'm sorry, gentlemen. While lifting his right hand, that too below the head. The writer of the story is writing a story basing on the situation which runs as hereunder. अब ये स्टोरी पढ़ो. Chetan Kumar Sharma, a student of BSc first year in Ram Sarup Degree College, when he went to see his result along with his friends, he observed that a room in his school was started burning due to short circuit. He deployed two of his friends to collect water bottles and blanket and asked other friend to cut the main switch, and he himself with fire extinguisher put out the fire. With the help of his friend, he extinguished the fire. लला, मैं इस स्टोरी के राइटर पाता हूँ. ये एवरेज बैकग्राउंड का लड़का है, मिलिट्री स्कूल का है, डिजर्विंग केस है. इसके जो स्टोरी का इसने लिखा है, इसमें नेग्लिजिबल ग्रामेटिकल एरर्स हैं, लेकिन ये भी मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल्स के लिए माफ़ नहीं है. इनको कंपोजिशन को करेक्ट ठीक करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर अलग से टीचर लगा के मैं करवा रहा हूँ. इसके पहले वाला जो आर्मी की जिस स्टोरी हमने पढ़वाई थी और इंटरप्रेट किया था, उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स ज़्यादा हैं. आप ध्यान रखना, ये पूरी अफसोसदायी क्वालिटी 4 फैक्टर्स में बटी हुई है. सबसे पहले मैं फैक्टर फर्स्ट पाता हूँ, फैक्टर इंटेलिजेंस. उसके अंदर 4 क्वालिटीज होती हैं. यह फैक्टर हेड से रिलेटेड होता है. पहली क्वालिटी है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी क्वालिटी रीजनिंग एबिलिटी, तीसरी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, एंड फोर्थ पावर ऑफ एक्सप्रेशन. इनके जो मिलिट्री वाला लड़का है, इसके स्टोरी में और वो अगले आर्मी मैन की स्टोरी में पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क पे है. इससे में कम है, उनके में ज़्यादा है. पावर ऑफ एक्सप्रेशन का जो टेक्निकल इंटरप्रिटेशन है, द एबिलिटी टू कन्वे द वे यू वांट. द वे यू वांट का फर्दर इंटरप्रिटेशन है कि यू कैन स्टार्ट इन इंग्लिश, यू कैन कम बैक टू हिंदी, अगेन यू कैन स्विच ऑन टू इंग्लिश. The journey undertaken by you, that too between English to Hindi or Hindi to English, should be smooth. ये हैंग न करे, स्टकअप न हो, एरर्स न हो, फ्लक्चुएशन न हो, ओठ न सूखे, पैर ना कांपे, आई कांटेक्ट मेंटेन रहे, फेशियल इंडेक्स में चेंज ना आवे. आपके बिहेवियर पैटर्न को, आपके ये एक्सप्रेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनालिटी का टेस्ट है. अगर ऐसा है तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन अंडर क्वेश्चन मार्क हो जाता है. अब मैं स्टोरी पा रहा हूं. लला देखो, 4 लोग खड़े हैं. मैं फिर से जा रहा हूं स्टोरी का जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया. यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ए स्टोरी अराउंड द पर्सन्स एंड सिचुएशन शोन इन द पिक्चर, आंसरिंग 3 बेसिक थीमेटिक क्वेश्चंस. व्हाट लेड टू द सिचुएशन. There must be a thematic connection between the situation and the point of start. There must be relation between problem and the solution. There must be correlation between demand and supply. ये डिमांड ये है कि 4 आदमी नोटिस बोर्ड पर खड़े हैं, चारों एक ड्रेस में. सबसे पहला आदमी का हाथ ऊपर है, वो ज़्यादा एक्टिव है. उसके बाद दूसरा आदमी वो उससे कम एक्टिव है. तीसरा आदमी भी एक्टिव है लेकिन पहले से कम एक्टिव है. और चौथा आदमी आधी निगाह उसकी बोर्ड पर है और आधी निगाह उसके सामने है, बोर्ड के नीचे है, और दाहिना हाथ ऊपर किया हुआ वो हेड के नीचे है. ये सिचुएशन है. मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये सिचुएशन आपको स्टिमुलेट करती है कि इसको रिलेट करके स्टोरी बनाओ. व्हाट दिस सिचुएशन डिमांड्स. जब तक ये स्टडी नहीं करेंगे, देखिए आपका इमेजिनेशन क्वेश्चन मार्क में होगा. कोई मैच है जो प्रीपोन्ड हो गया, क्या एग्जामिनेशन है जो प्रीपोन्ड हो गया, या प्रैक्टिकल में 2 लड़कों के मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, उनका परफॉर्मेंस बेटर है. क्योंकि कोई भी चीज
जब तक आपको सेंसिटिवेट नहीं करेगी, आप स्टिमुलेट नहीं होंगे। जब तक आपको धक्का नहीं लगेगा, जब तक आपके सामने कोई चीज इशू प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, आपको सॉल्व करने के लिए एनर्जाइज नहीं होंगे। इसलिए बोल रहा हूं, फिर से इसको इंटरप्रेट कर दे रहा हूं कि जो स्टिमुलस दिखाया जा रहा है और जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसके बीच में फ्रीडम ऑफ चॉइस है। यही फ्रीडम ऑफ चॉइस आपके एटीट्यूड को, आपके एक्शंस को, आपके इमोशंस को, आपके जज्बात को, आपके जुनून को, सबको प्रोड्यूस करती है। तब हम देखते हैं कि आप हमारे लिए सिलेक्शन के मटेरियल हैं या नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे दूसरा हम वीडियो पाते हैं। इसकी स्टोरी वो फायर वाली बिल्कुल नहीं है। फायर से इसका कोई संबंध नहीं है। फायर सीन तो हम ऑलरेडी देते हैं, हम आग, पानी, एक्सीडेंट हो तो ऑलरेडी देते हैं। इस सीन से आग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दिस स्टोरी डिमांड समथिंग, यू आर शोइंग द फायर, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द टीएटी, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टीएटी डिमांड एंड सप्लाई। ओके, नमस्कार, थैंक यू। कोई गलती हो तो माफ करिएगा।